معزز صحافی حضرات، بلوچ نسل کشی کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کی اس تحریک کا آج 41واں دن ہے اور گزشتہ 12 دنوں سے ہم نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے احتجاجی دھرنے کی شکل میں موجود ہیں۔ آپ صحافی حضرات اس بات کی تاحیات گواہ رہیں گے کہ کس طرح ہمارا پرامن لانگ مارچ، جو اس پورے دورانیے میں ایک لمحے کے لیے بھی پرتشدد نہیں ہوا، بلوچستان سے ہوتا ہوا جیسے ہی اسلام آباد میں داخل ہوتا ہے تو اسلام آباد پولیس کی جانب سے اس پر خیر برسائے جاتے ہیں۔ 3 دن تک ہم اسلام آباد میں ریاستی تشدد، گرفتاری اور جیلوں کا سامنا کر رہے تھے اور اس لانگ مارچ میں شامل درجنوں بزرگ، خواتین اور بچے ان شدید یخ بستہ راتوں میں واٹر کینن اور لاٹھیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف لاٹھیاں اور واٹر کینن نہیں تھے بلکہ ریاست کے بلوچوں سے واضح نفرت کا اظہار تھا۔ ہم تمام تر مظالم اور بربریت کے باوجود اپنے پرامن جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی ہمارے حوصلے کمزور ہوئے، بلکہ ہم اس سے زیادہ حوصلہ اور ہمت کے ساتھ جیلوں سے رہائی کے بعد اسلام آباد پریس کلب کے سامنے پرامن دھرنے میں بیٹھ گئے۔ آج نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے ہمارے دھرنے کا 12واں دن ہے۔ ہم اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ 100 سے زائد جبری گمشدگی کے شکار افراد کے لواحقین موجود ہیں اور اس کے ساتھ ماروائے عدالت قتل کیے گئے افراد کے لواحقین بھی اس دھرنے میں شریک ہے۔ ہم نے اسی دھرنے میں پریس کانفرنس کے ذریعے ریاست کے سامنے اپنے مطالبات واضح طور پر رکھے ہیں اور ریاست کو 7 دن کا وقت دیا کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان 7 دنوں میں مذاکرات تو دور کی بات ہے، اس ریاست نے غیر ذمہ داری، غیر سنجیدگی اور فاشزم کی انتہائی شرمناک مثالیں قائم کی ہے، جبکہ ہم شروع دن سے مکمل طور پر پرامن رہے ہیں، جس کی گواہی پوری اسلام آباد کی عوام اور صحافی دیں گے۔ لیکن اس ریاست اس پوری دورانیہ میں ایک دن بھی پرامن نہیں رہا۔ سب سے پہلے پولیس کی جانب سے ہمارے دھرنا جا کو خاردار تاروں کے اندر بند کر دیا گیا۔ جو صحافی حضرات یہاں موجود ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ان خاردار تاروں کے ساتھ باری نفری بھی تعینات رہتی ہے جو مسلسل ہمیں ہراساں کر رہی ہے، جبکہ ایک رات ان پولیس والوں کی موجودگی میں ایک ویگو گاڑی آئی جس میں سوار نقاب پوش مسلح افراد نے ہمارے پرامن شرکا پر بندوقیں تان کر انہیں ہراساں کیا، دھمکایا اور ہمارے دھرنے کے ساؤنڈ سسٹم کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اور اس کے 2 دن بعد جب ہم اپنے دھرنے کے مقام سے سیمینار کا انعقاد کرنے جا رہے تھے تو اس دن پولیس والوں نے دوبارہ ہمارے ساؤنڈ سسٹم کو چھیننے کی کوشش کی، جسے ہمارے شرکا نے ناکام بنایا۔ یہاں ہمارے دھرنے میں آنے والے ہر شہری اس بات کا گواہ ہے کہ ریاست کی جانب سے ہمارے پرامن مظاہرین کے خلاف لیے گئے اقدامات کتنے پرتشدد اور جارحانہ ہیں۔ یہاں تک جو بھی شہری ہمارے لیے کمبل یا کھانے پینے کی اشیاء لے آتے ہیں وہ ان چیزوں کو بھی اندر آنے نہیں چھوڑ رہے ہیں اور انہیں چیک کرنے کے بہانے ہمیں اور ان شہریوں کی اب درجہ تذلیل کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ان پولیس والوں سے وجوہات دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور ہمیں مختلف طریقوں سے ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاست کے پرتشدد رویے اور غیر سنجیدگی کے تمام ناقابل تردید ثبوت ویڈیوز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور آپ صحافی حضرات، سیاسی ورکر اور اسلام آباد کے شہری اس کے گواہ بھی ہیں۔ قابل احترام صحافی حضرات، ہم نے پچھلے پریس کانفرنس میں آپ کے توسط سے ریاست کے سامنے اپنے مطالبات رکھے تھے۔ ہمارے مطالبات میں سر فہرست یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ کی سربراہی میں بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے حوالے سے تحقیقات کرنے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بلوچستان میں بھیجی جائے اور اسی گروپ کی موجودگی میں بلوچستان میں جبری گمشدگی، ماروائے عدالت قتل اور بلوچ نسل کشی کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیا جائے۔ ہمارے ان مطالبات کو لے کر میڈیا کے ذریعے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس اپنے ان مطالبات کے حوالے سے مکمل جائزہ دلیل موجود ہے اور ہم اپنے ان مطالبات سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کی فوج اور خفیہ ادارے گزشتہ 70 سالوں سے براہ راست بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی میں ملوث ہے، تو ان 75 سالوں میں ریاست کے باقی ادارے، پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ نے انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے روکنے میں کیا کردار ادا کیا تھا؟ ان 75 سالوں میں متحد حکمرانوں نے بلوچستان میں ریاستی جبر کا اعتراف کیا اور پھر معافیاں بھی مانگی ہے، لیکن بلوچ نسل کشی کا سلسلہ نہیں رکا بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اس نسل کشی کے خلاف کم از کم گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچ تسلسل کے ساتھ سراپا احتجاج ہے، کبھی لانگ مارچ، کبھی مظاہرے، کبھی ہڑتال، کبھی دھرنا، اور گزشتہ 15 سالوں میں جبری گمشدگیوں کے خلاف وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا کیمپ بدستور جاری ہے۔ ان 2 دہائیوں کے دوران متحدہ
नाम नियात कमीशन और कमेटियां बनाई गई, लेकिन बलोच नस्ल कुशी और बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां बंद नहीं हुई और 2 दहाइयों के दौरान बलूचिस्तान ने इस रियासत का कोई भी दरवाजा खाली नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक हर दर और दरवाजे पर दस्तक दिए, अपील की, कानूनी और आईनी तरीकाकार अपनाए, लेकिन ये रियासत अपनी पुरतशद्दुद रवैयों को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल में हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील नहीं करें तो किससे करें? आप हमें बताएं, हम कौन सा तरीकाकार इख्तियार करें? अगर कोई ऐसा तरीकाकार जिससे बलोच नस्ल कुशी खत्म हो सकती है तो हमें बताएं, हम इख्तियार करने को तैयार है। जबकि दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क है और यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर पर पाकिस्तान बहैसियत रियासत के दस्तखत मौजूद हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स के चार्टर के मुताबिक हर शहरी के इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल जिम्मेदारी रियासत की है, लेकिन यहाँ रियासत खुद अपने शहरियों के इंसानी हकूक को पामाल कर रहा है। तो इस सूरत-ए-हाल में हमारा यूएन से मुतालबा बिल्कुल जायज़, आईनी और कानूनी है, जिस पर हम कायम है और अपने मुतालबात की मंजूरी तक कायम रहेंगे। साथी हज़रात, हमें हमारे इस लॉन्ग मार्च को शुरू दिन से रियासत की तरफ से पुरतशद्दुद रवैये और पॉलिसियों का सामना रहा है। बलूचिस्तान के जिस इलाके से लॉन्ग मार्च गुजरा है या लॉन्ग मार्च की हिमायत में पुरअमन मुजाहरे हुए हैं, वहाँ हमारे मार्च के शुरका और इलाका मकीनों पर जाली FIR दर्ज किए गए हैं। हमें मदद करने वाले लोगों को हरासा किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही है, जबकि तुर्बत और कोलू में हमारे पुरअमन मार्च में शिरकत करने वाले 44 सरकारी मुलाजिमीन को नौकरियों से मुअत्तल किया गया है। इस मार्च के आगाज में जब पश्तून रहनुमा मंजूर पश्तीन तुर्बत शहीद फिदा चौक पर जारी धरने में इज़हार यकजहती के लिए आ रहे थे, तो उन्हें भी रास्ते में गिरफ्तार किया गया, जो आज तक गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल है। हमारे पुरअमन धरने के हवाले से रियासत का पुरतशद्दुद रवैया बरकरार था कि 2 दिन कबल निगरान वज़ीर आज़म का प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद को दहशतगर्द कहना, लवाहिकीन की तौहीन और मार्च के शुरका से धमकी आवेज लहजे में मुखातिब होना, हमारे धरने को कवरेज देने वाले साफी हजरात और हमारे लिए आवाज उठाने वाले शहरियों की तौहीन करना हमारे पुरअमन धरने पर एक रियासती हमला था। हम ये वाजिया करते चले कि वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल सुबह से इस्लामाबाद पुलिस का रवैया हद से ज्यादा जारियाना और फाशिज्म पर मबनी है और इस्लामाबाद पुलिस हमारे दोस्तों की प्रोफाइलिंग कर रही है और बाकायदा वाज़िह अल्फाज में हमारे दोस्तों को कहा जा रहा है कि हम आपको बाद में देख लेंगे। रियासत के इस फाशिज्म को पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है और आप इस चीज का भी अंदाजा लगा ले कि ये रियासती फोर्सेज यहाँ अपने दारुल हुकूमत में हजारों कैमरों के सामने पुरअमन मुजाहिरीन के साथ इस तरह पेश आ रहे हैं, तो बलूचिस्तान जहाँ राब्ते के जराए महदूद हैं, हमारे लोगों के साथ किस तरह पेश आते होंगे। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया कि हमने रियासत को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया हुआ था, जो आज पूरा हुआ। इन 7 दिनों में रियासत की गैर संजीदगी, पुरतशद्दुद रवैये और धमकी आवेजाना लहजे के बारे में हमने तफसील से बात की और अब हम अपने लाइंदा लाएमल का ऐलान करते हैं, जो हमारी इस तहरीक का तीसरा फेज होगा। हमारी तहरीक के तीसरे फेज में हमारा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना जारी रहेगा। बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरों, हड़ताल और धरने का आगाज किया जाएगा। बैनुल अक़वामी दुनिया को आगाह करने के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाएगा और अगर रियासत का ये रवैया जारी रहा तो हम अपने धरने को इस्लामाबाद प्रेस क्लब से अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद ऑफिस के सामने मुंतकिल करेंगे, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने इस्लामाबाद पुलिस की जारियाना और पुरतशद्दुद रवैये से हमें शदीद खतरात लायक है, जो आए दिन किसी न किसी सूरत पर हम पर हमलावर होते हैं, हमारे शुरका को हरासा कर रहे हैं, जबकि हमें खदशा है कि इस्लामाबाद में हमारे शुरका को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसलिए हम अपने धरने को अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद ऑफिस के सामने मुंतकिल करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा से तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे। जबकि एक बार फिर हम रियासत को मीडिया के तवस्सुत से आगाह करना चाहते हैं कि हम अपने मुतालबात पर रियासत से मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसके लिए रियासत को अपने बचगाना रवैये को तब्दील करके एक रियासत जैसा रवैया अपनाना होगा और इस्लामाबाद समेत बलूचिस्तान भर में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को बंद करना पड़ेगा। ये रियासत की संजीदगी का इम्तिहान है और यही संजीदा रवैया अपनाने के बाद रियासत आकर हमसे मुज़ाकरात करे। और हम एक बार फिर वाज़िह अल्फाज में कहते हैं, अगर रियासत के रवैये में तब्दीली नहीं आई तो हम बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक को मजीद वुसअत देंगे। तशद्दुद, गिरफ्तारियां, धमकियां और हरासमेंट किसी भी सूरत हमारे रास्ते को रोक नहीं सकते। जबकि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील करते हैं कि बलोच नस्ल कुशी बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ और हमारे इस लॉन्ग मार्च की हिमायत और हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाई जाए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब ये जो नया तीसरे फेज का ऐलान किया है, इस तीसरे फेज की मुद्दत कितनी है, कितने दिन बाद आप अगर ये चीजें अमल नहीं होता
या आपसे रब्ता नहीं किया जाता तो फिर आप अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने जाएंगे? देखिए, ये एक लामहदूद मदद है। इसमें हम पूरे बलूचिस्तान से लापता अफराद के लवाकिन को यहाँ बुला रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि रियासत का रवैया हमारे साथ कैसा रहेगा, और उसी तरह हम आने वाले दिनों में इसका फैसला करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में हम किस तरफ इस धरने को लेकर जाएंगे। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये 12 दिन हो गए, इसमें आप क्या समझती हैं कि कोई कामयाबी के साथ साथ कुछ कामयाबी आपको मिली है, या हमने कल कुछ वीडियो देखी है जिसमें बाकायदा बिस्तरे जो लोग कंबल लेके आ रहे थे उनको चेक किया जाता, उनको नहीं आने दिया। तो अब शदीद सर्दी है, इसमें कितने लोग इस वक्त, क्योंकि ज्यादातर हम बुजुर्ग खवातीन को देखते हैं, तो कितने लोग बीमार हो गए इस वक्त? देखिए, हमारे जितने हमारे पास ये लवाकिन मौजूद है उनमें बेशतर बीमार है। अभी एक बच्ची है, उसको एंजाइटी अटैक हुआ है, तो एक टेंशन है, और दूसरा ये रवैया जो उन्होंने इख्तियार किया है। बूढ़ी औरतें हमारे पास है, चेस्ट इन्फेक्शन के उनको है, और ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस भी है, और मौसम भी इस तरह नहीं है। तो आने वाले दिनों में शायद हालात सख्त हो सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारा हौसला पस्त नहीं होगा, क्योंकि ये इन माओं का फैसला है कि वो यहाँ बैठे रहेंगे। वो 14 साल से अपने बेटों का इंतजार कर रहे हैं, इस तहरीक का हिस्सा रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर इनमें से किसी की तबीयत खराब हो जाती है या इनमें से किसी को नुकसान पहुंचता है, तो इसकी जिम्मेदारी और उसके कातिल भी रियासत ही होगी। ये बताइएगा कि अनवारुल हक काकर साहब ने तो अब साथियों को धमकी दे दी है कि आप जाके PLA ज्वाइन कर लें या BLA ज्वाइन कर लें। एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा। दूसरा साथ साथ ये भी बताएं कि जो यूथ आपकी यहाँ से गिरफ्तार हुई है, क्या वो रिहा हुए हैं अभी तक, क्या वो अभी तक गिरफ्तार हैं? जी नहीं, जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनको रिहा किया गया है, लेकिन उनको मुसलसल तौर पर हरासा किया जा रहा है। SP कोई फारूक नियाजी है, उन्होंने बाकायदा उनके NIC भी लिए हैं, और सामने मीडिया के सामने भी उनको ये कहा जा रहा है कि हम आपको बाद में देख लेंगे। तो और मैं वज़ीर आज़म के बयान पर यही कहूँगी कि मुझे बहुत अफसोस है कि इस स्टेट जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है ना, जिब्री गुमशुदगियों को जस्टिफाई कर रहा है, और ये लवाकिन यहाँ बैठे हैं। आपके किस आईन, किस कानून ने इनको दहशतगर्द करा दिया? लाएं और वर्डिक लाएं। सबसे पहले तो आप लोगों ने इनकार किया कि मिसिंग पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसके बाद आपका बयान हमारी तहरीक की तायीद करता है। आपका बयान हमारी तहरीक की तायीद करता है कि ये हजारों लोग आपके जिंदानों में, जिनको आप जो है ना गैर कानूनी तौर पर तशद्दुद का जो है ना निशाना बना रहे हैं। जमाल रेसानी ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के जो लापता अफराद का मसला है, ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? मुझे अफसोस होता है उन पर भी। अगर लापता अफराद का मसला बड़ा नहीं है, मसला तो है, इतना शदीद बड़ा मसला है कि यहाँ खानदान, आपको हम ऐसे खानदानों से मिलाएंगे जो 15-15 सालों से उनके बेटे लापता हैं। 9-9 लाख रुपए उनसे लूटे हैं फौजियों ने, ठीक है। उन्होंने अपनी लाशों के लिए भी फौजियों से पैसे लिए। 3 लाख, या एक बाबा 3 लाख उसने दिए कि मेरे बेटे की लाश मुझे सौंपी जाए। ये अगर मसला सबसे बड़ा मसला नहीं है, तो और कोई भी मसला बड़ा मसला नहीं हो सकता। मैडम, ये बताएं कि कल जब अदालत में चीफ जस्टिस साहब से जिब्री गुमशुदगियों की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर आप बलूचिस्तान में और आग ज्यादा तो उस पर ना रहे, तो आपको अदालतों से कोई उम्मीद है, या वो तो उन्होंने भी हाथ उठा दिए चीजों से? देखिए, अदालतों से अगर कुछ हो सकता है तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था जिब्री गुमशुदगी के खिलाफ, जहां एजेंसियों को जो है ना डायरेक्ट तौर पर मतलब किया था, उस वक्त हो जाता। बलाच बलोच का केस आज तकरीबन 41वां दिन है, वो सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, और उस FIR को क्वाश किया जा रहा है। उम्मीदें तो हमारी अदालतों से है, इस रियासत से है, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो चुके हैं। आज 41वां दिन है। यही अदालतें इन लोगों को प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग इस तहरीक से जुड़े हुए हैं उनको मुअत्तल कर सकते हैं। उनके खिलाफ सैकड़ों FIRs उन्होंने दायर किए, और हम जो इस सर्दी में यहाँ बैठे हैं, हमें हरासा किया जाता है, हमें थ्रेट किया जाता है, उस पर ये अदालतें कभी नहीं नोटिस नहीं ले रहे हैं। अगर फैज ईसा साहब को ऐसा आजाद कमीशन नया बनाते हैं जिस पर आपको भी एतमाद हो, तो क्या आप अक़वाम मुत्तहिदा वाले जो मुतालबा है उससे पीछे हटेंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कमीशंस पहले भी बनी है, कमेटियां पहले भी बनी है। सबसे पहले पुराने कमीशंस का एहतसाब किया जाए, और हमारा पहला मुतालबा, सबसे अहम मुतालबा है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जस्टिस फैज ईसा से पहले भी बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए हैं, और ये अदारे इन्होंने हमें इंसाफ नहीं दिया। अगर वो इंसाफ दे सकते तो सुमोटो नोटिस लेकर इन तमाम को जो है ना रिहा कर दे, और जिब्री गुमशुदगी पर पाबंदी आयद करें। 41 दिनों के दौरान 20 लोग जिब्री गुमशुदा हुए हैं। 20 लोगों को गुमशुदा किया गया एक्स्ट्राजुडिशली। 38 से अदब लोगों को CTD ने एक्स्ट्राजुडिशली मारा है। सबसे पहले उस पर नोटिस लिया जाए, फिर कमीशन बनाई जाए। कमीशनें बनाना, कमेटियां बनाना, मेरे ख्याल से ये बेख्तियार
बेख्तियारी की एक अलामत है। सारे शवाहिद आपके पास मौजूद है, फिर कमीशन बनाने का क्या फायदा? इन लोगों के केसेस आपकी अदालतों में हैं, आपकी अदालतों ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए हैं, आप उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सकते? अभी क्या कमीशन बनवाना है? अभी क्या कमीशन बनाना? हम सबूत लेकर आए हैं आपके सामने, इनके प्यारे नहीं है, इस पर क्या कमीशन बनाएंगे आप? मैडम, गरीदा फरूकी ने आपकी वीडियो क्वालिटी और ट्विटर रीच पे तनकीद की है कि इनको बहुत बड़ी सपोर्ट है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उनसे यही कहूंगी कि हमें अफसोस भी होता है और इस बात की खुशी भी है कि हमने आपको इरिटेट किया हुआ है, और हमारी आवाम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज है वो वही लोग हैं जिनको आपके लोग जो है ना धमका रहे हैं, हमको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे, और हमारी ट्विटर रीच हमारे खिलाफ निकले हैं जिसको आप जस्टिफाई कर रहे थे, क्योंकि यहाँ हर इंसान का खानदान होता है, हर इंसान के जो है ना जज्बात होते हैं। जो हम बयानियां लेकर आए हैं वो इंसानियत पर मबनी है, और इस इंसानियत के ईरान वज़ीर-ए-आज़म का बयान आपके सामने है, वो उनके बयान से नहीं लग रहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप किन लोगों से मुज़ाकरात करेंगे? देखिए, हम फिर से कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ये पर उन पर डिपेंड करता है कि वो कब हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। इसी वजह से हमारे जो इस तहरीक है इसके 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, जिसमें हम यूएन की वर्किंग कमेटी को बुलाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के बयान के बाद ये पूरी दुनिया इस बात की गवाह रहेगी कि किस तरह जिबरी गुमशुदगी के इतने बड़े संगीन मसले को इस स्टेट का वज़ीर आज़म भी जस्टिफाई कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।